Hello guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought new updates regarding PhD admission. Before starting, I request you all please watch the video till end and like it and share with your friends who are interested in doing PhD and PhD, MTech or some other programs also. So IISc Bangalore has given updates regarding PhD admission, MTech research admission, MTech Master in Design and Master in Management admission, and integrated PhD programs, PhD under external registration programs. Now the website will open from this 22nd of February 2021. 22nd February 2021 and last date is 31st of March 2021. The last date is 31st March 2021. Why it is given this much time? Because in March the GATE exam which is conducted this year, the result will came in mid of March. After that they will give some times to newly qualified students also for applying the to apply the form. So there are various departments where this PhD program will be running in IISc Bangalore, like PhD in Science, Faculty Astronomy and Astrophysics, Biochemistry, Ecological Science, High Energy Physics in Organic and Physical Chemistry, Material Research, Mathematics, Microbiology and Cell Biology, Molecular Biophysics, Molecular Reproduction, Development and Genetics, Neurosciences, Organic Chemistry, Physics and Solid State and Structural Chemistry. So these all are the departments comes under Science, where you can pursue your PhD. Next one is MTech Research and PhD in Engineering faculty. In engineering, there are also various departments like aerospace engineering, atmospheric and oceanic sciences, chemical engineering, civil, computer science and automation, earth sciences, electrical communication engineering, electrical engineering, this electronic science engineering, instrumentation and applied science, management studies, material engineering, mechanical engineering, nanoscience and engineering, product design and manufacturing, sustainable technology and computational and data sciences. There are also some areas interdisciplinary like biosystem science and engineering, this energy, mathematical sciences, nanosciences and engineering, water research, cyber physical system, then climate change, brain and artificial intelligence. So these all are the departments comes under interdisciplinary areas. Regarding eligibility, the qualifying degree requires is 4-year bachelor degree program. For that you must have your valid GATE score or NET or JRF. This is mandatory if you want to pursue PhD in integrated after bachelor's. Second one, if you have master degree in science and master degree in economics, geography, psychology, management, commerce, operation research, computer science and application, then you can apply in master degree in science or management or something other departments like computer science. For that you also must have this valid GATE score and NET JRF. This is mandatory. And third one, if you have master degree in engineering or technology in architecture, agriculture, pharmacy, veterinary sciences, then you can also then again you can apply for this PhD program. Here there is not mandatory that you must have GATE score, but it is desirable, means you will get preference. Next one, the qualification is if you have MBA, then also you can apply for the department for management studies and ecological sciences. In this also you must have valid GATE score or NET JRF. Graduates of any course with a minimum duration of 4 years from any CFDT with minimum CGPA of 8.5 out of 10 or its equivalent for PhD only, desirable to have valid GATE score. Next one, for some biological streams, if you want to apply, then you must have MBBS or MD. In this also you must have GATE score and must have valid GATE score or NET or JRF.
if you want to want to apply in PhD in some science stream after B Pharma, then again you must have some valid GPAT score or GRF. So these all are the qualification. Here some notes is given. The GATE, GPAT, NET, JRF or other national entrance exams should be valid as on 2nd of August 2021. जो भी आपका यहाँ पे गेट स्कोर यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे वो 2 अगस्त 2021 तक वैलिड होना चाहिए. नेट JRF में आपका कई सारे एग्ज़ाम्स होता है, वो यहाँ पे कंसिडर आपका हो जाएगा, लाइक जॉइंट CSIR, UGC नेट फॉर JRF, UGC नेट फॉर JRF, DBT JRF, ICMR JRF, JEST, NVHM screening test 2021 and this INSPIRE. These all are come under NET JRF. Applicants applying through INSPIRE mode must be in possession of valid provisional INSPIRE offer for consideration of their application at level 2 of the selection issued by DST at the time of interview. सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होने वाला है, वो पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट and or qualifying degree as detailed in above table. The selection is based on the performance of interview. In some of the department an aptitude test or preliminary interview will be precede the interview or final interview. किसी केस में आपको रिटन टेस्ट भी हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, या एक माइनर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा. तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है. ये आपका वैरी भी कर सकता है. और इसमें आपका एमटेक के लिए भी अभी कई सारे डिपार्टमेंट्स में आएगा फॉर्म. तो कोई यदि ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हैं तो अभी अप्लाई कर सकते हैं 22 फरवरी के बाद, या किन्हीं का रिजल्ट आता है 15 या 16 के मार्च के आसपास में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेट इनका 31 ऑफ मार्च तक है. तो सेम डिपार्टमेंट सारा सेम ही है. बस यहाँ पे आपको देखना है कि आपको जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग पूरा 100% गेट स्कोर पे होगा. फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन है, तो इसमें आपको 70% गेट स्कोर का आपका मैनेज होगा और 30% कैरियर एनालिसिस मार्क्स आपका होगा. फिर कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे क्लाइमेट साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, नैनो साइंस इंजीनियरिंग है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम है, तो इसमें भी 70% गेट का वेटेज रहेगा और 30% आपका परफॉर्मेंस ऑनलाइन इंटरव्यू का रहेगा. फिर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी 70% गेट का वेटेज रहेगा और 30% ऑनलाइन रिटन टेस्ट का. उसी तरीके से कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 70% गेट स्कोर का वेटेज और 30% आपका ऑनलाइन इंटरव्यू का. एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बता ही चुके हैं. मिनिमम आपका सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए बैचलर डिग्री में इन अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और BE, BTech और BArch. इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड बाय MOE, UPSC और AICT, और मास्टर डिग्री इन फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम विथ वैलिड गेट स्कोर. इधर 19 का हो, 20 का हो या 21 का हो. यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना ज़रूरी है. वहाँ पे लिखा हुआ था डिजायरेबल, पर यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है. एमटेक प्रोग्राम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी गिवन ऑन दी IISc वेबसाइट अंडर इम्पॉर्टेंट डेट्स. एमटेक का जो भी डिटेल आएगा वो इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हो. और एमटेक का जो काउंसलिंग्स वगैरह होगा वो COAP पोर्टल के थ्रू होगा. स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट में कई सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए. जैसे वार्क में यदि कोई वर्क कर रहे हो, या DRDO में, इसरो में, नालको, NTRO में करें, KSRTC, BMTC, BDA, PWD, CPRI, ACIWRM, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसर्च या सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर DRIP प्रोजेक्ट. अप्लाई फॉर कोर्स प्रोग्राम अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मस्ट कंपल्सरी फिल एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द प्रिंटेड वर्सन इन डुप्लीकेट ऑन और बिफोर 5 अप्रैल 2021. तो यदि इनमें कोई वर्क कर रहे हैं तो वो भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के लिए, या PhD यदि करना हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं.
मास्टर डिग्री ऑफ डिज़ाइन भी आपका है, उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो बाय सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एलिजिबिलिटी आपका इसमें वैलिड गेट स्कोर आपका चाहिए या सीट 2021 स्कोर चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 70% गेट या सीट का स्कोर का होगा और 30% जो आपका होने जा रहा है वो ऑनलाइन डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू का होगा। मास्टर मैनेजमेंट में भी आपका वैलिड गेट स्कोर चाहिए या जीमेट स्कोर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 15% गेट या कैट या जीमेट स्कोर आपका होगा कंसीडर, 15% यूजी का परफॉर्मेंस, 30% कम्युनिकेशन स्किल एंड 40% परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन इंटरव्यू। और इसमें कुछ इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स भी है। तो जैसे बायोलॉजिकल साइंस है तो उसमें फर्स्ट क्लास चाहिए आपको, जो भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेस है इंक्लूडिंग बायोटेक या फार्मास्यूटिकल। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जैम होना चाहिए 2021 बायोटेक में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में। उसी तरीके से केमिकल साइंस है, इसमें भी जैम केमिस्ट्री में आपका मैंडेटरी और बीएससी आपका होना चाहिए साइंस बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। मैथमेटिक्स का भी सेम है, बीएससी आपका मैथ से हो और जैम आप क्वालिफाई कर रखे हो। तो ये सारे थे इंटीग्रेटेड में। और कुछ आपका पीएचडी अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी है। और ये जो है आपका दिस प्रोग्राम इज मीन फॉर प्रोफेशनल फ्रॉम R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री और फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर। तो वो आपका पीएचडी अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें सेम है, आपका यूजीसी नेट होना चाहिए या गेट होना चाहिए, NBHM होना चाहिए या ICMR JRF वगैरह स्कोर है, यूजीसी नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल के लिए 800, SC/ST PWD के लिए 400 और ERP कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी आपका 2000 है। स्पॉन्सर्ड के लिए भी 800 है, ये आपका नॉन रिफंडेबल है। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपका ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इंटरव्यू वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। और स्कॉलरशिप आपका जो भी है MHRD या कुछ एक्सटर्नल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो जो भी स्टैंडर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ से पीएचडी करने या एमटेक करने के लिए वो यहाँ से अप्लाई ये IISc बंगलोर में आप अप्लाई कर सकते हो। पर ध्यान रहे इसमें आपका अच्छा खासा गेट स्कोर हो तभी आपका चांसेस है इसमें होने का। जैसे करीब करीब एबव 75 यदि गेट मार्क्स आप ला रहे हो तभी चांसेस है 75 या 80, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो टॉप 100 या 200 के अंदर में रैंक हो तब जाके एमटेक वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। बाकी पीएचडी के लिए तो हो सकता है मिल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है पीएचडी के लिए गेट स्कोर का, पर एमटेक के लिए आपका टॉप 200 या में हो गए तभी आप अप्लाई यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।